بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان 3 گرہ انسان کو باندھتا ہے، لیکن جب انسان پہلی بار الحمدللہ کہتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ وضو کر کے دعا پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، جو انسان یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ بہت خوش قسمت ہے۔ صبح اٹھتے ہی جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 زندگی کی حفاظت، نمبر 3 انسان کا اس دن کا رزق۔ تمہارے بہترین دوست تمہاری صحت ہے، مگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ ناظرین، اللہ پاک کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ گہری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھانا کھلانا یہ بیوی کی غلامی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ناظرین، کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر طرف تو شیطان کھڑے ہیں۔ تم کسی بھی شخص کو برا نہ جانو، ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا تم اسے سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو رب کریم کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کسی انسان کو ایسا اتفاق ہو نماز کے دوران تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ ناظرین، اگر پیشاب قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھایا کریں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید خوراک ہے۔ ناظرین، کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ مسکرانا سیکھو، زندگی میں رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ جو زخم دکھتے نہیں وہ دکھتے بہت ہیں، اور ناظرین، آج کل قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے، چپ رہنے کی بھی اور بولنے کی بھی۔ جو انسان کسی برتن میں کھا کر اس کو اچھی طرح صاف کر لے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ناظرین، بہت قیمتی ہے دوستو، تمہارا دل بہت قیمتی ہے۔ کوشش کرو اس کے اندر وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پہ بلاؤ۔ دوسرے لوگوں کو غلط نہیں بلکہ خود کو صحیح ثابت کرو۔ کسی کے منہ پر بدتمیزی کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ وہ سوچیں جو تمہیں بے سکون کرتی ہیں ان کو سوچنا چھوڑ دیں۔ اور ناظرین، مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو کے لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے صدقہ نکالا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ مدد کرو فائدے کے بغیر، سب سے ملو مطلب کے بغیر۔
आजिज़ी के साथ चलो, गरूर के बगैर। ज़िंदगी जीना सीखो, दिखावे के बगैर। दरूद शरीफ पढ़ने वालों को मसाइब से निजात मिल जाती है। किसी के आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले तुम अपने दामन के अंदर जज़ब कर लो। यही इंसानियत की मेराज है। अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाला कभी किसी का मुखलिस नहीं हो सकता। लोग बुरा कहते हैं तो कहने दो, क्या तुमने सुना नहीं? अल्लाह करीम जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। नाज़रीन किराम, खामोशी में सुकून होता है। लफ्ज़ों का सफ़र इंसान थका देता है। बर्तन और ज़र्फ़ छोटा हो तो वो ज़्यादा किसी चीज़ को संभाल नहीं सकता। चाहे तकवा हो, दौलत हो, शोहरत हो, इल्म हो या इज़्ज़त हो, उस रिश्ते से ला तौल्की ही अच्छी जिसके अंदर एहसास ही ना हो। अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह पाक को भूल गए। वो लोग रिज़्क़ रोज़ी की फ़िक्र में तलाश रिज़्क़ की है, राज़िक़ का ख्याल ही नहीं। नाज़रीन, ख्वाह एक झूठा कितना भी रफ्तार से दौड़ ले, मगर सच्चा उसको आखिर एक दिन जा पकड़ता है। अपनी ज़मीर की खिड़की को हमेशा खुले रखो, वहाँ से हमेशा सच्ची आवाज़ें सुनाई देती हैं। अल्लाह पाक का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है जिसके बाद कोई मंजिल नहीं। मुस्कुराना सीखो, ज़िंदगी में रोना तो लोग सिखा देते हैं। जो ज़ख्म दुखते नहीं वो दुखते बहुत हैं, और आजकल कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की भी। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। बदनस्ल और नमक हराम का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। बद से इखलाक के अंदर मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। परेशानियों का दायरा कितना ही वसी क्यों ना हो जाए, याद रखिए अल्लाह पाक की कुव्वत हर चीज़ पर गालिब आकर रहती है। ज़मज़म का पानी ठीक तरीके से जिस मकसद के लिए पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। उम्मीद जब अल्लाह करीम से जुड़ी हो तो टूटने का काम नहीं होता। गुफ्तगू करना एक ऐसा अमल है जिससे इंसान लोगों के दिल में उतर जाता है या लोगों के दिल से उतर जाता है। ज़िंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। एक गैर ज़रूरी बहस इंसान के किसी भी करीबी दोस्त को तुमसे जुदा कर सकती है। बुढ़ापे के आसार आने लगें तो मछली खाओ, जैतून का तेल इस्तेमाल करो और अनार का जूस पियो। जिसके पेट में कीड़े हों वो काली मिर्च खाए। जिस्म लटकना शुरू हो जाए तो जिस्म पर चंबेली और गुलाब के तेल की मालिश कर लिया करें। डिप्रेशन के मरीज़ गेंदे के फूल की खुशबू सूंघ लिया करें। खड़े होकर पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हर खाने के बाद एक खजूर का दाना खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। हमल के दौरान चिकनाहट वाली चीज़ें खाने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। चावल खाकर पानी पीने से पेट बढ़ जाता है। खाना वक्त पर ना खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है।
केला फ्रीज़र में रखने से नुकसानदेह है। अगर दांत में दर्द हो, बैंगन का रस पी लो। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करो, इससे खाना जल्दी हजम नहीं होता। जिनका मैदा कमज़ोर हो, उबले हुए आलू का पानी इस बोल में डालकर पी लें। हरी प्याज की चटनी खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। जिनके जोड़ कमज़ोर हों, गुड़ खा लिया करें। पागल शख्स को खजूर खिलाने से वो ठीक हो जाता है। माहवारी का दर्द हो तो केले और बादाम का जूस पियो। सेब पर लौंग लगाकर खाने से आँखों के हलके मिट जाते हैं। लौंग दही में डालकर निहार मुँह खाने से वज़न कम हो जाता है। अक्सर ज़्यादातर गलती जो लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज़्यादा बताते हैं। दूसरे लोगों की कहानियाँ छोड़ो, अपने आगे भी आईना रखो। कोशिश करने का तुमको हक है, मगर गिला करने का हक नहीं है। बेटियों का ज़रफ़ देख लें, दुनिया उनके सामने बेटे दुआ में मांगते हैं। किसी भी इंसान का नमाज रोज़ा पढ़ना चाहो तो उसकी अकल और सच्चाई को देखो। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपना इजहार करें। शुक्रिया।